अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। कदीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको दिखाते हैं बाजार की रौनक। क्या बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ जी भाई जी, की हाल है आफ्ताब साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। नागी साहब, आपके दोनों शागिर्द इंतहाई मधुर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हाँ जी जी, ये सब मेरे उस्ताद होना ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਤਫੈਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ 10 ਹੋਣਾ ਦਾ ਦਮੇ ਦੀ ਤਫੈਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਚਖਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਢੋਲਕੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ? और यार, मैं तो खुद ढोलक की थाप पे शो कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, मेरे लेफ्ट पे भी राइट पे भी म्यूजिक क्लासेस होती हैं और बड़ी शानदार क्लासेस होती है। मेरा दिल चाह रहा है मैं ज्वाइन कर लूँ। ये बहुत बड़े स्टूडियोज हैं, हाईएस्ट क्वालिटी यहाँ पर म्यूजिक तैयार किया जाता है। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨੂਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਛੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੇ। शर्म करो, बेचारे नाबीना से लोग है। ਉਹ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। वो क्यों? ਇਹ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। डे टू डे क्या मतलब? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਪੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। और वेलें क्यों लेता है, ये क्या करता है? ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਜੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ ਹੈਗਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਢਾੜੀਆਂ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, हाँ जी, ਜਿੰਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, 70 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ। कौन भूखा मर रहा है जेन्युइन? ਐ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और बेवकूफ, वो माहिर फल्कियात हैं, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਨਜੂਮੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। का एक छोटा सा हिस्सा है। आलिम फाजिल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, हाँ जी। ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। उसे किसने बचाया? ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ। तो आपको कैसे पता है कि वही तोता है? ਉਹ ਹਮਸਾਏ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਪਨਾਹਗਾਹ ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਈ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਤ हरकत दरबारी वाली कर रहा है, गाना इसने को और सुना। ਇਹੀ ਭਾਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਚ। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। ताता किन ता डिता किता दिन दिन दाना दिन दिन ना करिंग डाउन द टाइम। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? मेरा तान पूरा टूट गया। ਜੀ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ? जैसे ये पहले मायूस करते हैं आज भी वैसे ही करेंगे। मैं तो तंग ही आ गई हूँ। बाजी मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने हमेशा आपसे गुजारिश की है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। दिन ब दिन उस नियाजी का ग्राफ ऊपर जा रहा है और हम नीचे जा रहे हैं। ਓਏ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿਆਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੱਪਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਉਛਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਨਸੀਬੀ। और जज सारे के सारे उसी की बात कर रहे हैं। मैडम उसकी नहीं, कानून की बात कर रहे हैं। ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਢਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ। सर ये कौन बिठा रखे हैं आज आपने? अच्छा जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं एक माहिर फल्कियात और एक उनके बहुत बड़े मोतकद। जी सर। बुजुर्गों, कब से काम कर रहे हैं आप? उदों किसी भी काम नहीं कीता ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ। वाह, ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। आपको कैसे पता चला कि इन्हें बहुत पहले इल्म हो जाता है? ਗੈਬੀ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਕਾਰਗੋ ਫੜਿਆ ਜਾਣੀ ਹਰਕਾ ਸਾਰਾ। तो पकड़ा गया? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। यार तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੀਦਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਕੀਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਣਾ ਤੂੰ, ਅੱਛਾ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫਲੱਡ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕੀਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀਦਤ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੀਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਫ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕੀਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕੀਦਾ ਅਲਫ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਕੀਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਬਦ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀਰਾਨ ਹੋਈ ਪਈ। ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਬਦਲ ਦੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਈਟ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਾਈਟ ਪੈਚੀ ਕਰੋ। क्या हो रहा है? अभी दुबई आ गए, 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 आ लो जी आने तो इनाम बन रहे ना, ऐसे बन रहे। लो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बस बेटे बस बहुत है। नागी साहब ये आपको कुछ नहीं देता? ਇਹ ਜੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। कितने मैं अरबा पति सा और मैं हजारा पति रह गया। ओए होए 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 मैडम तू जरा साइड पे हो जाओ, मैं जरा एक अहम और सियासी गल पूछनी है। आज आप भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैनू ना प्रोफेसर कहने तेन शर्म आती है, तेरे च एक भी गल नहीं प्रोफेसर वाली। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਚੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। और की मेरे चाचे नू है की होया सही तरह दस। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੇ। मुश्तरी वाला ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਨੇ? ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਈ ਜੇ। प्रोफेसर मैं बड़े बड़े अवारागर्द, बड़े बड़े वाहियात सैयारे देखे ने, पर मुश्तरी वर्गा एक भी नहीं वेख्या। या बिट्टू भाई आप पागल तो नहीं है? ओ यार मैनू तो पागल मुश्तरी ने कीता होया है। वो कैसे? हर चढ़ते सियारे ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 300 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਹਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मेरे साथ भी यही हाल है, मुझे भी कोई खबर सही नहीं दी, वो भी हमारे बारे में। आफ्ताब साहब आप बताएं, मेरी कोई पेश कोई गलत साबित हुई है? प्रोफेसर साहब आप करते ही बहुत कम है, इंतहाई कलील पेशगोइयाँ आपने की हैं और वो भी बड़ी मोहतात सी करते हैं। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਕੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰਦਾ। अच्छा, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। वो कैसे? ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਆਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਕੋਈ ਲਾਹਨਤ ਆ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਤੇ। ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੰਬਾਰ ਤਿਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। शकील साहब आपने गौर किया है कि इंतहाई नामाकूल लगने के बावजूद ये बंदा कैसी दिलचस्प बात कर गया कि मोदी जीता हुआ इलेक्शन लगता है हार गया है और कांग्रेस हारा हुआ लगता है जीत गई है। ਰੂਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਸ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸੀ ਸਫੀਰ ਨੇ ਕੈਸੇ ਟਵੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। नहीं शकील साहब सीरियसली, ये क्या था जो रूसी सफ़ीर ने किया और हमारी हुकूमत ने एहतजाज नहीं किया आगे से? जी मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक तरह से जो है अपना एक डिस्प्लेजर शो किया और बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से शो कि किया। आप जो कुछ कर रहे हैं हमारी बड़ी गहरी नज़र है इसके ऊपर। ये अलग बात के फैसले पाकिस्तानी अवाम ने करने हैं, लेकिन हमारी हर चीज़ पर गहरी नज़र है। ये भी एक पैगाम था कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है। इसी को तो मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेजर। बिल्कुल डिस्प्लेजर है कि आप इस कदर अमेरिकनाइज हो चुके हैं एक एक चीज़ में। चाइना तो है ना हाथ हौला रखता है, रशिया इज़ अ बिग माउथ। रशियन स्टाइल हमेशा ऐसा ही रहा है। ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। अच्छा ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰੀ, ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਓਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਇੱਥੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ, 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 ਟਦਨ 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 ਹਾਂ। ਆਰਾਮ ਇਹ ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਕਰਨੀ ਜੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਮਰਾਸੀਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਏਦਾਂ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਓਏ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਏ ਵੇ ਦਿਲ ਬਰ ਦਿਲਦਾਰਾ ਦੇ ਗਇਓ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ, ਹਾਏ ਵੇ ਦਿਲ ਬਰ ਦਿਲਦਾਰਾ ਵੇ ਦੇ ਗਇਓ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ, ਬੇਕਦਰਾ ਵੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਬੇਕਦਰਾ ਹਾਏ ਵੇ ਦਿਲ ਬਰ ਦਿਲਦਾਰਾ। ਝੂਠੇ ਅਜੇ ਕਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਲਾਉਂਦੋ ਵੇ, ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੱਕਦੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਨਾਰਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਓ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬੇਕਦਰਾ ਵੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਬੇਕਦਰਾ ਹਾਏ ਵੇ ਦਿਲ ਭਰ ਦਿਲਦਾਰਾ। वाह जी वाह। आफ्ताब साहब, जी, मैं इन बाबा जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। ये जो मेरे पास बैठे हैं? हाँ जी। जी जरूर पूछिए। हमारी पार्टी के हालात भी ठीक होंगे कि नहीं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਓਏ ਅਕਲ ਦੇ ਆਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी, पीपल्स पार्टी। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ। तो इसका मतलब है फिर न्याजी का ही चर्चा रहेगा। ਆਹੋ ਜਰਨਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ। ये क्या मतलब? ਭਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ 1। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੌਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉਹੀ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। नहीं तो फिर पूछना क्यों चाह रहे हो? ਉਹ ਸਰ ਭਾਵਾਂ ਮਨੂਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਐ ਹੋਈ ਨਾ ਕੱਲ। ਬਾਬਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ? ਬੇਟਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਅਲਬत्ता ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ। आहा। ਕੀ ਮਤਲਬ? बाबे की मुराद शायद व्हाइट हाउस के गेट से है, अगर व्हाइट हाउस के गेट से है तो वो नवंबर में खुलेगा, लेकिन उस वक्त तक आसार वाजे हो जाएंगे। वो तो उससे काफी पहले हो जाएंगे। ਭਾਈ ਮੈਡਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਸਰ। ਹੱਲੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਆਈਟਮ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਯਾਰ ਖਲੋਇਆ ਤੂੰ 1200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਓਏ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। पेमेंट कहाँ से आनी है आपकी? ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ये किस चीज की रकमें हैं? ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ तो डील किस चीज की करवाई है? सर कीमती पाकिस्तानी एहसासे कौड़ियों के भाव बिकवा रहे हैं इस जैसे ब्रोकर। ओए शर्म नहीं आती तुम्हें बिट्टू भाई? डूब के नहीं मरते हो तुम? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਰਕਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਟਮ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੀ? ਆਫਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ। ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੋ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਬਈ ਦਾ ਹੁਣ ਲਮਕ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੁੜੀਏ। सुनजे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं हुए, सुनजे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं हुए, वे तू जम जम आवे चन्ना तारियां दिलोए, सुनजे दिल वाले बुए।
ਲੋ ਜੀ ਆਖਰੀ 150 ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁੱਲੇ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਲੇਖੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਖੁੱਲੇ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਲੇਖੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਪਲਵੇ ਪਲਕ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਈਆਂ, ਖਬਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਗਰਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਏ, ਸੁੰਝੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੂਏ। और खुश कर देंगे, वाह वाह वाह। हेलो, हाँ जी बिट्टू बोल रहे हैं। देखो 15 मिनट ऊपर हो गए ने और तुसी हाल तक पेमेंट नहीं भेजी, ये कोई तरीका है? हैं? आहा, वाह जी वाह। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हो? हैं? मजाक कर रहे हो? 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 देखो मेरी गल सुनो, इस तरह का मजाक चंगा नहीं हुंदा। मैं तो ऊपर का किराया भी लुटा बैठा वां। मजाक वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज की डेस्टिनेशन पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत ज़िला अटक। वाह। अटक हमारा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का विद खैबर पख्तूनख्वा। हमने पिछले दिनों हरीपुर किया तो बहुत से दोस्त इस पे मुसर थे कि जी अगला डिस्ट्रिक्ट बाहर सूरत अटक ही होना चाहिए, और दोस्त हैं जो हमारे फोकस ग्रुप में जी, नॉट द कमेंट फ्रेंड्स। कमेंट्स तो फिर हज़ारों की शक्ल में होते हैं ना, सबको आप केटर नहीं कर सकते। तो ये जो फोकस ग्रुप वाले हैं ना, मैंने पूछा कि क्या ख़ास वजह क्या है, कहते हर चीज़ हमारी ओवरलैप कर रही है, हमारी पर्सनालिटीज़ ओवरलैप करती हैं, हमारे खाबे ओवरलैप करते हैं नेबरिंग होने की वजह से। यानी वो कटवा पे मुसर थे कि कटवा एक्चुअली अटक की डेलिकेसी है। फिर उसके साथ साथ मखड्डी हलवे के बारे में, मखड्डी हलवे का हमने उधर जिक्र नहीं किया, इधर का तो मखड जो जगह है वो है ही अटक। तो फिर जाहिर बात है जगह की निस्बत से नाम बता रहा है, दरिया सिंध के किनारे पे। तो ये भी मैं आज क्लियर कर दूं व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए और अपनी टीम के लिए कि बाज डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि आपको बाहर सूरत एज अ डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करना जरूरी है। अकेली हजरो, हसन अब्दाल या अटक या पिंडी घेप ये डिस्कस करना शायद नाकाफी रहे, तशनगी रह जाए, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट शो करने के लिए आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। इसलिए आज हम डिस्ट्रिक्ट अटक कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर के फासले पर है और इस शहर की बुनियाद 1904 में रखी गई थी। जो तारीखी कस्बा है वो है अटक खुर्द, उसी को डेवलप किया गया। इसका पुराना नाम कैम्बलपुर था, जिसे तब्दील किया गया 1978 में और इसे अटक बना दिया गया। और कॉलिन कैम्बल एक शख्स है जिसका नाम बड़ा मशहूर है इस वजह से कि ये उसके नाम से मशहूर है, फील्ड मार्शल कॉलिन कैम्बल। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ? हाँ जी, सारी डिटेल मिल जाती है। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਖਰੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ। ए रिसर्चा एवें नहीं आंदियां। सर आपने देखा आवाज कितनी जोर की आई है? हाँ सर, ट्रैक्टर ते तालू च वजी जैसे पुड़े पे लगती है ना, तड़ंग। अच्छा जी, मुगल बादशाह अकबर ने अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम को शिकस्त देने के बाद जब वापसी का कसद किया फ्रॉम काबुल, तो रस्ते में क़याम किया था इस मकाम पर, और यहीं इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत से मुतासर होते हुए एक बड़ा शानदार कला तामीर करवाया। वाह। वो कला आज भी मौजूद है, जिसे अटक फोर्ट कहते हैं।
وہ بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ فوج کے زیر انصرام ہے تو ایک طرح کا علاقہ غیر ہے، وہاں پہ جایا نہیں جا سکتا۔ لیکن سر وہ بھی صحیح حالت میں ہے یا جیسے کلہ دراوڑ کا حال ہے اسی طرح ہے؟ بھئی اگر فوج کے زیر انصرام ہے ظاہر ہے بہترین ہوگا۔ ویسے تو ملک بھی فوج دے زیر انسلام نہیں آئے، ہاں جی ہے۔ مڑے دا بیڑا گھرا کیوں آیا پیا ہے؟ اب یہ شکیل صاحب آپ جواب دیں، بڑی باریک بات پوچھ لی ہے بابے نے۔ ناگی صاحب نے بڑا تھاٹ پرووکنگ کوسچن کیا ہے۔ ناگی صاحب کوشش کریا کرو باریک گلاں جڑیاں نا وہ نہ کریا کرو، تواڈے اگے پنو ورگے نالائک بھی بیٹھے ہوندے نے تاکہ سمجھ آوے لوکاں نوں۔ نہیں وہ میرا خیال مینوں دس رہے ہوں نے۔ اس لیے تاں دا پیا۔ اچھا جی، انگریزوں نے اسے 1858 میں 1858 میں ایک کینٹونمنٹ کی شکل دے دی جو آج بھی قائم ہے۔ سر یہ بھی پٹھوار کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ہاں جی پوٹھوار، بلکہ سالٹ رینج یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਡੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਭੰਡ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਨਜਮ ਸੇਠ ਹੀ ਬਣਨ ਡੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ 12 ਕਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। सर मेरा एक सवाल आपसे। जी मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से आप वो नहीं कह रहे, वजह तस्बीहां, वो लफ्ज नहीं आ रहा। आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर छुरी थले साथ ले। ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭੰਡ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੌਮ ਚੌਂਸਕੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਣਨ ਡਿਆ? यार ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਣਾ ਪੈਣ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। सर मैं एक गल करनी भाई सी आप शो तुहाडे। चलने दें, शो चलने दें। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तू उनकी शो नूं धक्का लाण डिया है अगे। उतनी बात नहीं होती जितनी बढ़ा रहा है। अब बात करें, चले। सर ये क्यों मेरी नानी अम्मा बनी जान डिया? भाई वो सामने बैठे हैं, वो पागल है, वो बेवकूफ है, वो इनको सुनने के लिए बैठे हैं। सर इनू कह दियो मेरे नाल उर्दू ना बोले, फिर ना क्या उर्दू क्यों ना बोलूं, मुझे आती है, हमारा खानदानी काम है ये। खानदानी कादा तू ही चमोटे ने उर्दू बोलते। सर अटक की तरफ जिला अटक की 6 तहसीलें हैं। एक तो होगी अटक, आहा जंड, हसन अब्दाल, फतेह जंग, हजरो और पिंडी घेर। ਅਰੇ ਫਿਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ? ये सब की सब शिकार गाहें हैं। हाँ तो फिर तो गए होंगे। आप भी शिकार के शौकीन हैं? मैं भी शौकीन हूँ। कौन सी गन इस्तेमाल करते हैं? आप कौन सी करते हैं? शरले वाली और कौन सी? शरले वाली ਰਹੇ गन। ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਭਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਫਟਾ। दिल तो चाहता है तुम्हारा बगाना भी फोड़ दूं। पकाना। यार अटक में बहुत शिकार है, तीतर है, हुबारा बस्टर्ड है। हैं गुब्बारा बस्टर्ड केड़ा पाए ना? यार सारी जिंदगी ही भगाने पाड़े ने, गुब्बारा बस्टर्ड असि जिंदगी च नहीं देखे है। हुबारा बस्टर्ड इसका नाम है, इसे उर्फ आम में तिलौर कहते हैं। अच्छा जी, ये बात वजह तस्मिया। अल्लाह खैर सुकून हो गया है। वजह तस्मीया अटक को अटक क्यों कहते हैं? मकालाते तारीख अटक, इसके मुसन्निफ हैं राजा नूर मोहम्मद निजामी, हम साथ रेफरेंसेस भी दे रहे हैं ना। उनके मुताबिक अटक जो है ये हिंद को ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है रुकावट। वो जैसे हम एक आम समझते हैं अपनी उर्दू में भी। अटक अटक के अटकना। चलना। जी 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 जी। अटक अटक कर क्यों बोलते हो? तो इस इलाके में क्या अटकता है? यहाँ पर कहते हैं कि अगर दरिया चढ़ा हो ना तुगयानी में, क्योंकि गए वक्तों में ये दरिया भयानक दरिया होता था, इसके साइज पानी और तुगयानी की वजह से बहिरा कुचक कहते थे। ये छोटा समंदर था, ये बहुत पानी है। प्रेशर बहुत ज्यादा। तो कई कई माह इंतजार करना पड़ता था लोगों को उबूर करने के लिए, क्योंकि पुलें शुलें तो होती नहीं थी। अकबर को एक दफा 3 महीने इंतजार करना पड़ा कि दरिया उतरेगा तो फिर पार चलेंगे। इसीलिए उसके इंतजार में कला बन गया होगा। जी उसके इंतजार में हो सकता है इसको अटक कह दिया कि भाई यहाँ आकर सब अटकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो पहाड़ी से टकराता है ना, बहुत बड़े पहाड़ से, तो उसकी वजह से अटक कहलाता है। अच्छा जी, एक और मुहक्किक हैं नुसरत बुखारी, अपनी किताब जिला अटक तज़किरा और तारीख में एक और फैक्ट बयान करते हैं इसकी वजह तस्मिया का, कि अटका खान एक सरदार था जिसकी बीवी का दूध पिया था बचपन में अकबर ने। जब हुमायूं अकबर को अमानतन कुछ सालों के लिए काबुल छोड़ने गया था ना, उसकी बीवी ने बड़ा प्यार किया। बहुत छोटा था अकबर, उस वक्त चीरख्वार था। उसके साथ रिस्पेक्ट और उसकी एस्टीम के लिए इस कले का नाम अटक रखा, अटका खान से। बल्कि वो वक्त के साथ साथ अटक बन गया, अटका ही रखा जी था। जी अटका रखा था। फिर
कसरत इस्तेमाल से अटक बन गया। दरियाए काबुल अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में गिरता है। वाह, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। वो तुम्हारे घर के पास से एक बहुत बड़ा दरिया गुजरता है जो नाला है एक्चुअली। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ भाई गुजरांवाला के अंदर से नहीं गुजरता, सियालकोट से आ रहा है। कौन कौन से नाले हैं, बहुत बड़े बड़े नाले। ਨਾਲੇ नहीं जी, नहर है होते। नाला एक और डेक क्या है? हाँ, हाँ, देखो यार बिल्कुल। कैसा अहमक है ये। ਉਹ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। हालांकि तुम चीज उधर की हो, तुम्हारे खोपड़ से तो यही लगता है। अच्छा जी, अहम मकामात। कला अटक, ये बहुत खूबसूरत कला है, देखकर लर्जा भी तारी होता है, हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? अफसोस आम बंदा नहीं जा सकता। जी, इतनी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के बावजूद लोग वहां नहीं जा सकते। गुरुद्वारा पंजा साहब, माशाल्लाह, क्या बात। ये हसन अब्दाल में है और रिवायत है कि पत्थर के ऊपर एक कंधा है, उसका अक्स, और वो गुरु नानक देव का हाथ। ये अटक से 35 किलोमीटर के फासले पर है हसन अब्दाल में, और इसकी ज़ियारत करने सिख यात्री दूर दूर से आते हैं, खास तौर पे कनाडा से, इंडिया से। इंडिया तो नज़दीक है, कनाडा बहुत दूर है। फिर है जी अटक ब्रिज, ये भी एक दिलचस्प पुल है कि इसकी 2 मंजिलें हैं, एक ट्रेन के लिए है और एक आम ट्रैफिक के लिए। अब इसका इस्तेमाल सिर्फ ट्रेन की हद तक रह गया। इसी तरह का एक बहुत ही हसीन पुल है, बहुत कदीम लेकिन बहुत खूबसूरत है। यह पुल नहीं है खूबसूरत, दरिया वहां पे बहुत खूब। इससे डाउन स्ट्रीम जाएं, लेट्स से के अबाउट 50 या मे बी 60 किलोमीटर्स, तो वो है कालाबाग। कालाबाग के मकाम पर भी अल्लाह ने इस दरिया को बड़ा हुस्न दिया, और अकेला दरिया नहीं है, इर्द गिर्द पहाड़ है, फिर वहां पर खूबसूरत घना जंगल है, इसलिए तो काला बाग कहते हैं। कि जो डार्क ग्रीन कलर है ना, गुरूब के करीब करीब का नीलगूं पानी, और उस पर मुस्तजाद बल खाती नदी। ऐसा बल खा रही है वो, ऐसा हसीन बल खा रही है। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ जी, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਛੂਏ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? नहीं शक्ल तो नहीं कह सकते, सर अलबत्ता। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਡੇ। अगर आप खामोश रहते तो आपका बरमबार बना रहना था। तो जी उसकी उर्दू पकड़ी गई। वहां पे एक बड़ा मशहूर नेशनल पार्क है, काला चिट्टा नेशनल पार्क। सन 2008 में इस पार्क का कयाम अमल में आया, और काला चिट्टा दरअसल पहाड़ी सिलसिला है। तो ये भी अगेन अफसोसनाक बात यह है कि इस कदर खूबसूरत टेरेन है, ये इतनी हसीन पहाड़ियां हैं, और ट्रेन का रास्ता, पगडंडियां, छोटी नदियां, नाले, लेकिन ये भी सेंसिटिव एरिया करार दिया गया है ड्यू टू यूरेनियम, ड्यू टू इंस्टॉलेशंस, ड्यू टू आर्सेनल और एनीथिंग। ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ तो काला चिट्टा वहां पर आप जा नहीं सकते अनलेस यू हैव एन एनओसी। इसी पार्क में इंडियन चीता, चिनकारा और भूरा तीतर, हबारा बस्टर्ड ये मौजूद होते हैं। अच्छा जी, मशाहीर। वाह जी वाह। सर सिकंदर हयात, ये मुतहिदा पंजाब के वजीर आला और कायम मकाम गवर्नर थे, बड़ी उम्दा शख्सियत, और इनसे 4 हाथ आगे इनके साहबजादे थे। सरदार शौकत हयात खान, द नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल किताब के मुसन्निफ, और बहुत ही अहम कैरेक्टर तहरीक पाकिस्तान का। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यूथ विंग के सरबराह थे, और इनको शौकत पंजाब भी कहा जाता था। उर्दू में इनकी किताब का टाइटल है गुमगश्ता। गुमगश्ता कौम। सिकंदर हयात की तो 42 में डेथ हुई थी। फिर शौकत हयात की हमशीरा और सिकंदर हयात की साहबजादी ताहिरा मजहर अली, बहुत दबंग खातून थी, बड़ी दबंग खातून, लाजवाब खातून। बेहतरीन जो खवातीन अटक ने पैदा की हैं उनकी शायद सरखेल थी। और तारिक अली की वालदा, स्ट्रीट फाइटिंग ईयर्स वाला तारिक अली। पाकिस्तान सर्वाइव 1983 की किताब, उसकी बात हो रही है। ये वाह कैंट से इनका ताल्लुक था, जो पहले अटक का हिस्सा, बाद में रावलपिंडी का हिस्सा बन गया। फिर एक बड़ी अहम शख्सियत मलिक अता मोहम्मद खान, ये राइडर थे बड़े मशहूर, हॉर्स ब्रीडर थे, टेंट पैगर थे, बड़े महफिली और मजलिसी आदमी। इनकी डेरेदारी बड़ी मशहूर थी, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। और जिन लोगों से ना मिलने का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, उनमें एक मौसूफ भी है, सरदार सलीम हैदर। सरदार सलीम हैदर को जानते हैं भाई? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਦੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਹੈਦਰ ਹੈ। ये तुम्हारा गवर्नर है पंजाब का, बेवकूफ।
ਭਾਈ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ गरीबो रहमान गरीब और बलीग और रहमान ये अभी तक उसी गरीबो रहमान को समझ रहा होगा, उससे तब्दील हुए कितनी देर हो। अच्छा जी, अगली शख्सियत मोहम्मद इजहारुल हक। पिछले से पिछले हफ्ते हमने फरंगे आसफिया में इनका शेर पढ़ा था। ये शायर हैं, कॉलम नवीस हैं, टेलीविजन पर मुख्तलिफ मुबाहिसों में तबसरा भी करते हैं और सिविल सर्वेंट रहे हैं। फिर मेरे वालिद के बड़े दोस्त हैं। वो है कि गुलाम भागते फिरते हैं मशालें लेकर, गुलाम भागते फिरते हैं मशालें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमां जैसे। वाह वाह वाह, कैसा बरमहल शेर। राजा नूर मोहम्मद निज़ामी, ये माहिर आसार कदीमा हैं। इन्होंने अपने घर पे करेंसी नोटों और नायाब सिक्कों का एक बड़ा खूबसूरत अजायब घर बना रखा है। मोहसिन रज़ा, ये इस्लामाबाद में मुकीम सीनियर सहाफ़ी और कॉलम नवीस हैं। फिर अमरनाथ सहगल, ये इंडिया के बड़े मशहूर मुजस्समा साज हैं और इनका ताल्लुक अटक से है। फिर हैं सज्जाद अज़हर, ये शायर भी हैं, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं, मुहक्किक हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख पर बड़ी दिलचस्प किताब रावल राज के नाम से इन्होंने लिख रखी है। खाबे, मखड्डी हलवा, निहायत लजीज सूजी का हलवा। वाह, इसमें और आम हमारे सूजी हलवे में बुनियादी फ़र्क ये है कि इसके नीचे जो शीरा होता है ना, उसकी कैरामेल बनी होती है, जो पतनी बन जाती, वाह, और ऊपर साइडों पे रिच विद नट्स, खास तौर पे पिस्ताशियो एंड कैशू नट्स। फिर एक आइसक्रीम है मसूदी की, और पुरानी रिवायती बड़ी शानदार पुरानी आइसक्रीम, जैसे ओकाड़ा में गए वक्तों में मिला करती थी, अब तो मुझे नहीं पता। डिसेंट आइसक्रीम वीनस चौक में, जी, जी। वो पहलवान नहीं सी, हाँ जी, हाँ जी। यूसुफ बलवान बॉडी बिल्डर। जी यूसुफ पहलवान, उसकी अपनी वो खुद बनाया करता था। अब तो नहीं है वो, नहीं जी, फौत हो गया होगा। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਾੜੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ, 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ 71 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। फिर लाहौर में चमन आइसक्रीम जिस तरह, ये भी रिवायती आइसक्रीम। चना चाट है, आजाद की चाट, वाह वाह, वो भी मजे की है। चपली कबाब, हाँ जी, चपली कबाब, मैं इन्हें चपनी कबाब कहता हूँ, ये चपली कबाब मशहूर है, चपनी कबाब। और मालाकंड होटल के। फिर हलवा पूरी, निहारी, सिरी पाए, खद वगैरह का नाश्ता करना हो आपने तो अटक में सरे फहरिस्त है ताज महल होटल। शाहपुर डैम की मछली, वाह 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 वाह, निहायत लजीज। ये रावलपिंडी फतेह जंग रोड पे काफी रेस्टोरेंट्स हैं जो बेचते ही यही मछली हैं। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? यार यहाँ की मछली जो है ना, ज्यादातर समुद्री मुझे पसंद नहीं है। मैं खाता हूँ सामन फिश, जो बाहर से आती है, दरियाई लाल रंग की, रेड सामन। अच्छा, आपका और मेरा माइंड बिल्कुल एक जैसा है। कुछ पेड़ा ना खा ली। आखिरी डिश है अब रह गई, ये हमने गुज़श्ता हफ्ते भी किया था, भला कौन सा? की पाइन कटवा गोश्त। ये घड़े में बनता है, घड़ा कुन्ना टाइप घड़ा होता है, उसमें बनता है बीफ का, बहुत ही लाजवाब। और यहाँ पर हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं चौधरी शमशाद, वो शो देख रहे थे मेरा। चूंकि चौधरी शमशाद को पैसे कमाने और बेहतरीन खाबे पकाने और दोस्तों को खिलाने के अलावा कोई काम ही कोई नहीं। उनका फोन आया कि पाजी कटवा गोश्त खाना जे, जिस दिन खाना होवे एक दिन के मार्जिन पे बता दे। भाई कटवा गोश्त मुझे भी बहुत पसंद है। इस बात का कटवे को पता है? कटवे को पता होना जरूरी नहीं, मुझे तो पता है ना मैंने क्या खाना है, तो कटवा मैंने खाना है, मुझे पसंद है। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ਦ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। Continue Hazrat, we'll take a break, stay with us. Welcome back. जी डॉक्टर साहब, खबर है कि बजरिया जूम पेशी के दौरान ड्राइविंग करने पर जज ने अमरीकी शहरी को गिरफ्तार करवा दिया। this happened in Michigan. एक तरह से डॉक्टर साहबा की रियासत है। वो कैसे? इनका घर है वहाँ पे, इनका ननिहाल सारा मिशिगन में रहता है। मिशिगन वाले किधर रहते हैं? सर ये वाकया क्या था? ये वाकया बज़ाहिर तो कोई ऐसा ख़ास नहीं है, ये न्यूज़ वर्दी बन गया ज़बरदस्ती ओके कि आपकी वीडियो लिंक पे पेशी, ये कोई नई बात नहीं है। हमारा कप्तान बेचारा भुगत रहा आजकल ये पेशियाँ। तो पेशी के लिए बुलाया था जज ने कि भाई चूँकि तुमने बग़ैर लाइसेंस के
गाड़ी चलाई थी। तो कहता नहीं जनाब मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो चुका था या एक्सपायर हो चुका था। ओके। तो मैं गाड़ी चलाता रहूं अनफॉर्चुनेटली और मेरा चालान हो गया, तो आप मेहरबानी करें। तो वकील को जज ने कहा कि ठीक है उसे ले आना। उन्होंने कहा नहीं जनाब वो दूर है, फासले पे है, आ नहीं सकेगा। जब वो आता है तो अदालत का टाइम खत्म हो जाता है। ही वर्क्स इन अ डिफरेंट टाउन, ओके। सबर्ब में काम करता है। तो जज ने कहा कि आप वीडियो लिंक पे बजरिया जूम उसे पेश कर दें। ओके। तो जज ने जब उसके साथ गुफ्तशुनीद शुरू की ना, जज ने देखा कि इसने बेल्ट लगाई हुई है और पीछे जो मनाजर नजर आ रहे हैं वो मूव करने के, कैसा अहमक और घामड़ था। चलो जी। इसको ये पता ही नहीं था कि ये बजाते खुद जुर्म है। और जब एक बार कह भी रहा है कि सस्पेंडेड लाइसेंस पे एक्स्ट्रा ड्राइव करते हुए पकड़ा गया, फिर भी करता जा रहा है। मैं कन्विंस्ड हूं कि इसको पता ही नहीं था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ है ये। जज ने कहा कि आर यू ड्राइविंग? तो उन्होंने कहा जी आई एम ड्राइविंग। कहते क्या सोच के ड्राइव कर रहे हो तुम? कहते जी मुझे डॉक्टर के पास पहुंचना है। कहते आप डॉक्टर के पास ना पहुंचे, आप फौरन से पहले थाने पहुंचे। कहते जी क्यों? कहते अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करो वरना आई विल हैव यू पिक्ड अप। वाह वाह वाह। और फिर वो पेश हुआ, उसका तो बाप भी पेश होता। ਐਵੇਂ ਬਾਪ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਗਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਖੱਬੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਡਏ ਸੀ। अच्छा जी, डमी म्यूजियम से हमने बुला रखा है इसी सूरमा को जो जज को इम्प्रेस करता रहा वीडियो लिंक के जरिए और साथ उसका वकील है। ਡੰਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਮੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣ, ਸਾਂਗਲੇ ਦਾ ਨਾ ਬਣ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ? अच्छा तुम ये गेटअप पाकिस्तानी वकीलों वाला क्यों करके आए हो? ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਫੀਸ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ $100 ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। $100? हाँ जी। इतनी ज्यादा कैसे दे दी तुमने? क्यों जी ये ज्यादा है? तुम्हें देखते ख्याल आता है कि $5 भी बहुत होगी तुम्हारे। जो $100 मिली है ना, कचहरियां च रौला पै गया, रंधावा साहब ने बहुत फीस कर ली अपनी। ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ $5 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। तो बाकी के 95? ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆ। यानी $95 ये बदतमीजी क्या है? हाँ जी, अगर मैं $5 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੜਦਾ ਵਾ। ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਜਾਹਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ? ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਬਹਿਣਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਫੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਚੂਹਾ, ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਚੂਹੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਕੇ ਖੋਲੇਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। यार रंगीला किधर है? इससे याद आया, ਓਏ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਘਾਹ ਤੇ। क्यों? उसकी कमी रंधावा साहब पूरी कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਸ ਪਾੜਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਨਸ ਪਾਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। दिल में क्या मसला, क्या क्या करवाने जा रहे थे? ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਟੂਬ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੂਬ ਪਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਲਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਤਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਇੰਜ ਲੰਬੇ ਰੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡੀ ਤੰਗ ਗਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਵੀ ਵਨ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਆ ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਲਓ, तो पता क्यों है? उसका इलाका, ये खुद गाजियाबाद का है। उसका अपना मोहल्ला है। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਯਾਰ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ, दसो दसो। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਡਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ। ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ। किसको? ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਸੀ। तो तुम क्या कर रहे थे? ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਡਿਆ। अच्छा फिर? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, हाँ। ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ जोक ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਊ। अच्छा जी, फिर चाचे का केस लड़ा कि नहीं लड़ा? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੜਿਆ। वाह वाह वाह। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, अच्छा जी। ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਨ। वो फौत हो गया। ਤੇ ਕੁੱਲ ਫੌਤ ਹੋਏ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। बेवकूफ, तुमने केस नहीं लड़ना था। ਉਹ ਜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਚਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ। वाह। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਸਤੇ ਕੇਸ ਵੀ, ਲੋਹੇ ਲੈਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜੇ ਮੈਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਨ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਾ ਲਓ। इस तरह के वकीलों को अमेरिका में एम्बुलेंस चेजर्स कहते जी, हैं। एम्बुलेंस चेजर्स। यानी किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसके पास पहुंच जाएंगे, मैं तेरा केस लड़ना वा, जिन्ने पैसे मिले अद्धो अध कर लांगे। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ 5% ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। वाह वाह वाह। रंधावा साहब, तुसी बहुत इंप्रेस कीता। ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਸਿਖਾਵਾਂ। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।